Good afternoon, dear all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. All. Just let me just make others also enter the meeting. क्योंकि इंटरनेट का इशू तो पता नहीं खत्म होगा कि नहीं होगा, बट आई जस्ट कनेक्टेड माय फोन so that you will not face much problem. Good afternoon everyone, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon. On your videos, please, everyone. And please, with your name, you have to mention the section also. Rename yourself with your section even. Okay? Who is Sanyam Thakur? He is there in our class? Any of the sections? She is Ocean. Ocean के नाम देखो फिर चेंज है ना बेटे. I can't enter anyone. Last time भी आपको पता ना महाराज पता नहीं कौन आ गए थे आपकी क्लास में. फिर अभी कभी हनुमान जी आ जाएंगे, फिर कहीं कोई और महाराज आ जाएंगे, कोई पता नहीं ना. आप एक ओशन बोल रहे हो? नहीं, no. बेटे just mute yourself. Don't do it like this. Commenting. Okay. Listen to me. Vanshika is there. Vanshika to 9G hai. Yeah, I know this. Sanyam Thakur. Who is that? कोई ज़रा chat में मुझे बता दो. Otherwise, I'm not going to add this person. I have just informed Ramani ma'am regarding Maharaj ji last time. तो बड़े अच्छे रंगीन नाम रख के लोग आ जाते हैं आपकी क्लासेस में. So I don't want special effects in my class. मुझे सिंपल सा बच्चों को पढ़ाना है. पक्का क्वेश्चन है. चलो. Then I'm going to enter the person. Otherwise नहीं, मैं किसी को एंटर नहीं करूंगी. हाँ जी, अपनी जरा वीडियोस ऑन कर लो my dear students. And once I'm sending the message to join the class. I've just muted everyone. ठीक है? Vamika is not able to unmute herself. Vamika is trying to do. Let me check once. Everyone is there. हाँ जी, अपना नाम सारे रीनेम कर लो अच्छे से. ओशियन अपना नाम चेंज करो. ओशियन नाइनी. I can change your name. This is very important. Ocean is able to. हाँ जी, Vamika, what do you want to say? Speak out. Ma'am, network error with your video. मेरी वीडियो में आ रहा है? नहीं. Is there? सबको आ रहा है? क्या आ रहा है? मेरी वीडियो तो है, चल रही है. आपकी तो सिर्फ वॉइस थी ना. It was elongated. ओके, पता नहीं. चलो, मैं फोन नेट यूज कर रही हूँ आज तो. ये मेरा अभी 2 दिन उन्होंने बोला कि लग जाएंगे अभी. So I'm trying my best. वैसे मॉर्निंग में तो I have taken the class. Rudra is very happy. Why you are so happy, Mr. Rudra? Why you are so happy? मैम मेरी यहाँ पे भी लाइट जाई जा रही है. वो मॉडेम खुद ही ऑफ हो ही जा रहा है, तो मेरा भी ऐसे ही हो रहा है. अच्छा, ठीक. Okay. So I'm going to start sharing your mind maps. ठीक है? So let's start with that. फिर टाइम वेस्ट होगा हमारा काफी ज्यादा, वो मुझे नहीं करना है. We have already finished your first chapter, है ना? We have already done in the mind map your first chapter. 2 more people are entering here. Ahan, Srijan. Excuse me, ma'am. One last thing. Is there an holiday tomorrow? I don't think so. We have not got any information, but होनी चाहिए. Yes, ma'am. करवाओ, आप लोग करवा दो, हमें भी हो जाएगी. It's not bad to get a holiday.
It's not bad to get a मैम holiday. की क्लास होगी तो मैम को जरूर कहूंगी कल छुट्टी होनी चाहिए. मैं 20 का कोच अच्छा. मांगूंगी. Okay. मैं स्ट्राइक में जा सकती हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए. Okay. Gania is left. Gania का घर में. So shall we start? चलो जी, आपकी बोलने की शक्ति मेरे पास आ गई है. अब आप बोल नहीं पाओगे, अब आप सिर्फ लिख पाओगे, वो भी चैट बॉक्स में. And if I would read and then give you answer. है ना? चलो. So let me start with this. Okay. So we were on chapter number 2. आज हम करेंगे people as a. चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या अभी? देखो जा कितने बच्चों को आता है. People as ग्रेड 10 वाले अपनी क्लास लगा के बैठने वाले थे आज. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स बेटर. यस यस यस. चलो शुक्र है नाम तो पता है बच्चों को. इट्स रियली गुड. इट्स रियली गुड. आपको नाम तो पता है चैप्टर्स के एटलीस्ट. यस गानिया, आई गॉट इट. चाहिए तो ऊपर ज्यादा ही चला गया. ये है इधर. चलो. Next is here, people as resource. So we're going to start with this. ठीक है. First chapter, I hope किसी को कोई doubt नहीं है. हाँ जी मृदुल. Yes मृदुल. Any doubt in that? मैम डाउट नहीं है. एक्चुअली मेरी वीडियो ऑफ रहेगी क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग थोड़ी सी कम थी, तो मैं कंप्यूटर पे लगा रहा हूँ क्लास. Okay, fine. Fine. So here I'm just going to start with the class. Listen to me very carefully. So we're going to start with people as a resource chapter. ठीक है जी. So what is there? Okay. So are you all ready? Parents को hug and kiss करके आए हो सारे के नहीं? पहले पूछ लो. आप लोग भूल जाते हो, बड़े खराब हो आप लोग, सारे भूल जाते हो. किया नहीं किया? Just show me thumbs up if you're done. झूठ झूठ मत बोल लो. मैंने कॉल कर लेनी है, मम्मी को पूछ लेना फिर कॉल करके. करते हैं कैसे ही, मुझे ही करते रहते हो आप लोग, बोलते रहते हो ऐसे. ओके फाइन. सो आई रिसीव्ड मैसेजेस फ्रॉम एवरीवन. ठीक है. ओके गुड. इसी बहाने से मम्मी को आप किस एंड हग तो कर देते हो. ये तो आप भूल जाते हो. सारा टाइम वही आपको इतना प्यार प्यार करते रहते हैं, आप लोग तो करते नहीं. और मैं करवाती हूँ फिर जबरदस्ती आप लोगों से. चलो वेरी गुड. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास नाउ. ओके. So here is your chapter 2. We are going to do the mind map. Are you all ready? Ready ho sare? Okay. Next is people as resource. ठीक है. So first thing which we are going to do, population is an asset. मैंने आपको शुरू में जब चैप्टर करवाया था मैंने पूछा था अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है so is it an asset or liability? सबका आंसर तब था liability. अब अगर पूछोगी तो what will be that? एसेट और लाइबिलिटी. जल्दी जल्दी जरा. अगर एसेट है तो थम्स अप भेज दो, अगर नहीं है तो डाउन वाला वो एक्शन अगर होता है जो साइन. वैसे तो आपको पता क्या है. थम्स अप यू कैन सेंड इवन. ओके. चलो देखते हैं आप लोग कितने एक्टिव हो, कितनी अच्छे से. वेरी गुड. सो ऑलरेडी आई गॉट इट इन द चैट इवन. ठीक है. हाँ जी. ओके. सो one person just see the number of participants in our meeting. ठीक है. So if I'm going to ask anyone, so that person can tell me that. ठीक है. Population is an asset rather than a liability. What is an asset? What is a liability? Asset means something that is good. 43 including me. Fine. So we have 43 participants including me. ठीक है. Okay, so population is an asset rather than liability. What is liability? Liability means खर्चा. एकदम से कहते ना ये तो बंदा ना आ गया, ये तो वगार है मेरे लिए. सुना है वर्ड वगार? ये बंदा आ गया अब तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा. So what is that? That is liability. ठीक है. Asset means
This person is helping me. Okay. So listen very in a very nice way. So वो जो हम लोग कहते हैं ना कि खर्चा है, that is liability, and an asset means that is a saving, that is a blessing for us. So we call that as your asset. ये कौन है? शांतनु डोगरा. Who is this? Anyone in our section? Any of the section, please send me in the chat. Shantanu Dogra. I'm not going to enter that person then. Who is that? Please tell me. In our section or other section? Which section? Tell me the section. Then I can enter him, otherwise no. तेजेश्वर 9E में है. 9E. Is a 9E. तेजेश्वर का सेक्शन कौन सा? तेजेश्वर आपका तो 9F या 9E है. Okay. G. Fine. I'll enter him. Then I'm going to enter him. Just let me stop the sharing. Where is that person? Just a second. किधर गया वो participants? Not able to enter him. चलो दोबारा से आएगा फिर कर देते. चलो. Let me see if he is going to enter again. Then let me share the screen again. We were here. चलो. So let's do it now. अर्नव जी ये क्या दिखा रहे हो आप? Where are you? Arnav, you are not in the video. Where are you? Yes, Arnav. Hanji, what are you doing? मैम पता नहीं कैमरा खुद वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विच हो गया. Okay, fine. I was thinking what happened now. Now again, Shantanu is there. Okay. So let me just, okay, start with again. So ability to contribute in creation of gross national product. Gross national product, I told you, all the goods and services that is being produced in the country. ठीक है? So जो इस चीज में contribute करता है, we call that is the asset. And who is not contributing in this, we are just telling them these are the liabilities. अब जितने भी educated लोग हैं, they are all the educated people, all the healthy people, all the skilled people, fine, and the working people, employed people, they are all our assets. They are all our assets. ठीक है? So these are all assets. ठीक है? It's like you are at a home. अर्नव के साथ कभी कभी हो जाती है ऐसे. So I'm also having distractions at my home. My brother is there. He can also. Arnav, okay. No problem. ठीक है. So my brother is here. He is also distracting like you. He is also younger one to me. And then he is also there during the classes. He also has to say something and then think. Hanji, bolo. Yes, Abhishek. See. Okay, okay. So you also have distraction. No problem. हमें सबको करना पड़ेगा. मैनेज जैसे भी है. ठीक है? चलो next देखो. So human resources developed into human capital formation कैसे बनते हैं? Human resource, मैंने बोलता population है तो that is human resource. And when we provide them with education, when we provide them with skills, when we provide with them with health care facilities, so then we make the human
resources into human capital. So you know the meaning of human resources and human capital? I told you. Everybody know the meaning of human resource and human capital? Okay. So I can see the thumbs up. No. Okay. Okay, fine, fine. Okay. So see the next one. There are economic activities by men and women. I already told you there are 3 activities. What are these? PST. If you remember, PST. What were these? So let me check who will give me answer for this. Let me check. So कौन करेगा answer? Aman. Unmute yourself and give me answer. Unmute. Amandeep Kaur 9G. Anji, there are 3 people. Vanchik. Yes, bolo, Aman. What are the 3 activities which I told you? Unmute nahi ho pa rahe? Yes, unmute karo bolo. Good morning, ma'am. Good afternoon. It's afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, bolo. Yes. Give me answer. Primary activities, secondary activity, and tertiary activity. Okay, fine. Thank you. Okay, it's all correct. Okay, so there are 3 activities: primary, secondary, and tertiary. Okay, so now Rudra will give me answer. What is other name we are giving the name? What is other name we are giving to primary activities? I told you. I have sent you the difference even. You already know more than this. Yes, unmute karo. Bolo Rudra. The name for primary. Others also think I told you already. नहीं पता. Very good. जिसको पता है, that person will give me answer. Tejal tried well, but it's not the correct one. Okay. So I am going to ask this from Vanchika. Unmute and speak. Ma'am, I don't know about this. Oh. चलो जी, गुगली होगी फिर तो. चलो जी. है ना क्रिकेट वाली गुगली? पता होगा बॉयज को तो गुगली भी होती है. चलो. So, chalo. Nupur, unmute yourself and give me answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is known as extraction sector because it involves some raw material. No. You are trying well, but no, it's not the right answer. Rahul. Yes, Mr. Rahul. Unmute yourself and give me answer. Good afternoon. Give me answer. Agricultural activity. अभी भी सही नहीं है. और किसको आंसर? Paramveer, give me answer. Paramveer, just give me answer. Production sector. No. Riva. अब Riva रहेगी. Riva ji, give me answer. I'm not sure, but maybe it is agriculture sector. No. Shabnam. Miss Shabnam. Ma'am, agricultural sector. No. चलो ये वाला चॉकलेट मेरे पास मेरे ही आ गया. Extraction sector. No. It's wrong. Extraction sector. farming sector. No. अब मैं बोल रही हूँ, सुनो. नहीं आता. आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना. अगर सुनते तो फिर पता होता. नहीं पता आप लोगों को. सुनो. Agriculture and related activities. Agriculture and related activities कैसे? Forestry, dairy, animal rearing, animal husbandry, that comes under all these. Quarrying, ठीक है? Mining, we have included all these in the primary activities. ठीक है? So primary activities are always known as agriculture and related activities. What do we call this as? Agriculture and related activities. ठीक है? Secondary sector. Now, when we are giving the products second form, ठीक है? जब हम second form बनाते हैं, तो we will get that. Yes, you will get बेटा. Date sheet मिल जाएगी. ओजस. अच्छा नहीं, यहाँ पे ओजस नहीं है. ये 10th के बच्चे बीच में मैसेज करते जा रहे हैं.
Okay. Now listen to me very carefully. So यहाँ पे क्या था हमारे पास? क्या था? मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया. ओके, सेकेंडरी सेक्टर को अदर नेम क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? देखो देखो दिमाग देखते हैं किसका चलता है अच्छे से. ओके रीवा, गिव मी आंसर फॉर दिस. Manufacturing sector. Yes, it's right. Okay, what is other name? What is other name? Who will give me? Reva? Unmute. Yes, ma'am. Manufacturing sector. Manufacturing sector only. Rahul. Rahul will give me answer. Rahul. Ma'am, industrial sector. Yes, right. Nupur. Ma'am, industrial sector, I've sent you in chat box also. Okay. But there were 3 names I have just told you when we were talking about this. Okay? So I'm just telling again. So when we talk about your सेकेंडरी सेक्टर, ये बड़े ध्यान से सुनना बिकॉज ग्रेड 10 में भी ये टॉपिक फिर से रिपीटेड है. ठीक है, पहले बोल रही हूँ ग्रेड 10 इकोनॉमिक्स में भी ये टॉपिक फिर रिपीटेड है. जो भी बोल रही हूँ अभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस इज सेम टॉपिक विल बी वी हैव टू कंटिन्यू इन ग्रेड 10 इवन. ठीक है, सो चैप्टर इज देयर. फाइन. सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द चैप्टर 2 इज देयर एंड वो चैप्टर कभी भी सीबीएसई काटती भी नहीं है सिलेबस में से. ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी. सेकेंडरी में हमारा नाम आता है, इसका फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. वी कॉल दिस इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. अनदर नेम इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हो. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं इसको, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. ठीक है, सो वी कॉल दिस इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इवन. गॉट दिस? हाँ जी. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में दोनों में क्या होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स रेडी होते हैं. बट द थर्ड सेक्टर इज वी कॉल इट एज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में कोई प्रोडक्ट बनता है? टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्ट बनता है? अच्छा, अब 3 कैटेगरीज आर देयर एंड फ्रॉम दैट 3 कैटेगरीज मुझे ये बताओ, व्हेन आई टॉक अबाउट माय कैटेगरी तो आई कम्स इन व्हिच कैटेगरी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. हाँ जी, बताओ बताओ जरा, देखो मैं कितना दिमाग चलता है Ma'am, आप लोगों का. tertiary. I'm coming under the tertiary activities. Okay. So tertiary activity में what we produce? Mridul, give me answer. What we produce in the tertiary sector? हम टर्शरी में कोई ऐसे प्रोड्यूस नहीं करते, बस ऐसे ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, या अदर नॉन मार्केट एक्टिविटीज. Non-market activities. हम Are नॉन you sure? मार्केट नहीं, हम दोनों ही आ जाते हैं बीच में. बट एक चीज है, टेरिशरी में हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, हम आगे उसका ऐसे कर सकते हैं. What do you say? Tertiary? हम टर्शरी. Tertiary. टर्शरी. Okay. So, okay. Mute करो अपने आप को, Mridul. Yes. Okay. So here, Rahul. Rahul, give me answer for this. Ma'am, we provide services in tertiary activities. Right, right. This is the exact word I was looking for. Services. So we are getting only services. We are not producing any product. मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कैप्सूल्स तो नहीं दे रही आपको, लो जी कैप्सूल ले लो, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स आ जाएगी. आई एम सेलिंग एनी प्रोडक्ट? नो, आई एम गिविंग यू सर्विसेज, आई एम गिविंग यू नॉलेज. सारे चुप करके बैठे थे, सोच रहे थे मैम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और एकदम से स्माइल आ गई व्हेन आई सेड मैं कैप्सूल तो नहीं बेच रही हूँ, है ना. आई एम नॉट सेंडिंग दीज थिंग्स, आई गेस, है ना. So next देखो बेटा, next is there is tertiary sector is always concerned with the services. So services which are also important for other 2 sectors. ठीक है जी, कौन कौन सा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, सबके लिए important है these services. ठीक है, so primary and secondary के लिए these services are very important. Just a second, hold on. Just a second, hold on. आगे वाला पढ़ो जरा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला पॉइंट पढ़ो यहाँ पे, ये सारा पढ़ लो एक बारी. देन आफ्टरवर्ड्स मार्केट एंड नॉन मार्केट वाले भी एक बारी पढ़ लो, और इसको रिकॉल करो व्हाट आई टोल्ड यू मार्केट एंड नॉन मार्केट में. ठीक है, आई एम गोइंग टू म्यूट माई सेल्फ जस्ट फॉर 1 कॉल.
Yes, so done. Read. Everybody read this? Okay, fine. So market activities again are performed in the market, and we are just conducting these activities to earn profits or something in the money terms. Okay? Non-market activities we are doing for self-consumption purposes. Okay? We are not producing these services in the markets. घर पे बैठ के मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो this is non-market or market activity. I'm getting money for that. ये चीज याद रखना, दिमाग में रखना. मार्केट और नॉन मार्केट, बताओ बताओ. ओके, तो सबसे पहले तन्वी का हाथ हुआ रेस. तन्वी, गिव मी आंसर फॉर दिस. यस मैम, मार्केट एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, राइट, वेरी गुड. हाँ जी. नाउ शबनम विल टेल मी व्हाई इट इज मार्केट एक्टिविटी नॉट द नॉन मार्केट एक्टिविटी. अनम्यूट करो, बोलो. Ma'am, because you get profit or money for it. I am getting the salary for this, and that is in the money terms. ठीक है? So that is why it's market activity. Fine. Getting the point now? ठीक है? Yes, ma'am. Okay, fine. चलो नेक्स्ट. तो ये सबको क्लियर है, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ठीक है? सो ये जो है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज, दीज आर द पार्ट ऑफ मार्केट एक्टिविटीज ऑलवेज. ठीक है? नॉन मार्केट, अगर ये एक्टिविटीज हम सिर्फ अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए करते हैं, देन वी कॉल इट एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज. फाइन, गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो इट डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स. ठीक है? यहाँ पे 2 दिखाई है, तीसरी वाली अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने ऊपर कर दिया. ठीक है? अलग से कर दिया. सो वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स. वैसे इसके साथ हमने काफी चीजें पढ़ी थी. आपकी हेल्थ पॉलिसी पढ़ी थी, आपकी एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी थी, एसएसए के बारे में पढ़ा. एसएसए कब हुआ था लॉन्च? बताओ जरा, पूछो जरा आप लोगों को. ऐसे मैं पूछती जाऊंगी कुछ ना कुछ. एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान, याद है? कुछ पढ़ा था हमने ऐसा. When it was launched. बुक्स नहीं देखनी, no need of books. Okay, सबसे पहले नूपुर. Yes, give me answer. Ma'am, in 2001, 2002 it was launched. No. No, it's not the correct answer. Let me see the chat box. कुछ लोगों ने भेजा है chat box में. Let me check. Yes, Chanpreet right. Chanpreet is right. Paramveer is also right. Yes, I got Pragati ka right hai. Riva is right. Fine. Romil, no. Romil, same answer as Nupur has given me. It's not the right answer. Fine. Okay, Vamika, yes. Bol do. Is it 1969? No. It's wrong again. Now the next one is Shabnam. Okay, Shabnam, give me answer. 1935. No. Ocean. Unmute करो. पहले unmute करो देवी. मैम unmuted. Okay, बोलो. Ma'am, it is 2010. Yeah, right. This is the right answer. 2010. It's mentioned. जो 2010 कईयों के पेरेंट्स सरकारी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, so they have got job in SSA. नुपुर जी, पापा को जॉब SSA के अंडर ही मिली है. मिस नुपुर, पूछ लेना पापा को. ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट देखो जी, आगे आपका. So whenever we talk about the quality of population, we have got 3 quality. ठीक है? 3 points आते हैं. Just a second. Hold on. ठीक है? So there are 3 main points whenever we talk about. Are you able to listen me? Are you able to listen me? Okay. So see, there are 3 qualities. First is education, then is health. ठीक है? All are there. शबनम जी, म्यूट भी करना होता है अपने आप को आंसर देने के बाद. Okay. So see this.
एजुकेशन इज ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इसके लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। हेल्थ के लिए हमारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल था जो बना था, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला फिर अलग से पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एजुकेशन में क्या था, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, हमने सकल का केस किया था, सकल एंड विलास का। सकल हैज गेन्ड अ लॉट विद एजुकेशन, उसने अपनी लाइफ पूरी रिफॉर्म कर ली थी एक तरह से, अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी लाइफ दे दी थी। But we Vilas ka agar keh sako, he was not having education, so his life was not changed. His life was again the similar one as his parents were living. Fine. So contributes towards the growth of society. पढ़ा लिखा इंसान बाकियों के भी पढ़ने के पीछे लगाएगा, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पढ़े हैं तो आपको भी पढ़ने के लिए करवा रहे आगे काम. So it contributes to the growth of society, and it enhances national income, culture richness, and increases the efficiency of governance. These points are the part of your National Education Policy 1986. Okay? So this is the part of this. Next is health. So helps a person. Health में क्या आता है? Helps a person to realize his potential and ability to fight illness. अब हम लोग सारे अगर कोरोना से बचे हुए हैं तो इसलिए बचे हैं because we have good health. We have got good immunity. So it is because of this we are able to work with our full potential as well as we are able to fight against illness. So this is the point. Okay. Next, unhealthy person is a liability for organization. Unhealthy, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और एक दिन के बाद फिर छुट्टी, मैडम बीमार है, कल भी बीमार है, परसों भी बीमार है, तो ऐसे क्या चलेगा? That means rather I am turning an asset for my school, I'll be turning liability for them. स्कूल का नाम तो खराब हो जाएगा, एक टीचर की वजह से पूरा स्कूल की इमेज खराब हो जाएगी. सो इट इज टर्न टू बी लायबिलिटी. ठीक है. सो इफ आई एम वर्किंग प्रॉपरली फॉर द स्कूल, एनईपी क्या, नॉट एसएस से क्या हो गया? वामिका, it's 2010. It is mentioned in your book. It's mentioned in your I just saw that. How can it be 2010? It should be something in 1900s. So it was national education policy. What I was thinking of, that it should be something in 1986 is your national education policy. I was thinking of national education policy. Okay, okay, okay. ठीक है. हाँ जी, बोलो जी. Yes, बोलो नूपुर. नूपुर का भी है कुछ. Ma'am, I was reading about SSA on Google, and it showed that it was launched in 2001-2002, and it aims to provide education to the children of age 6 to 14 by 2010. It was launched by Atal Bihari Vajpayee. In 2010 only, it was started in all over India. हमारे जो मेरी सिस्टर को इसके अंदर जॉब मिली थी, आपके पापा को इसके अंदर जॉब मिली है 2000. नहीं मैम, मेरे पापा को 2000 से तो कितनी पहले जॉब मिल गई थी. अच्छा, फिर ठीक है. फिर I might be wrong in that. No, he was talking to me once and he was telling them I'm a government teacher, so I thought maybe he is in that. मेरी सिस्टर को 2010 में मिली थी. In 2001 only. That's why I was confused. Okay, okay. ठीक है. 2010 में हुआ था. SSA का मेनली जो हमारा था ना, पंजाब एंड ऑल ओवर इंडिया, इट वाज इन 2010. तो तभी आपकी बुक में भी मेंशन है 2010 है. They have mentioned in clear way. ठीक है. Yes, I'll search on Nupur. Let's see, it's coming. It's there. Just. Ma'am, I searched on Google, like Nupur said, so it's like coming like. हाँ. Google पर हर जगह मतलब Google बाबा हर जगह सही नहीं है, गलत हो जाता है काम खराब. Yes, ठीक है. But Google बाबा is not always correct. That is why we require teacher. Otherwise Google से सारे बच्चे पढ़ के पास हो जाते. It won't be possible. ठीक है. हाँ जी, रिदुल जी बोलो. What do you want to contribute? गूगल पे सच्ची में बहुत कुछ गलत होता है. मैंने बोला ही आपको, don't use Google. मैंने एक बार एक अपना क्वेश्चन सर्च किया, उस पे ऐसे पेपर हो गया हुआ था, मैंने बस चेक करना था. मैंने उधर सर्च किया, उधर पता नहीं क्या आंसर खुल गया. फिर जब रिजल्ट आया मैंने तो देखा जो मैंने किया हुआ था ना वो सही था, वो गलत था. गूगल वाला गलत था. Google गलत है. Google is not always wrong. Like कई sites हैं like Brainly and something like that. तो Quora. अगर
अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन सर्च करो तो मैं हर बार सोचती हूँ मैंने अपने मन में क्वेश्चन सोचा, इनके पास पूरा मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे आ गया, तुम्हारी बुक में भी है किसी में भी, जो खुद वेबसाइट ने नहीं लॉन्च किया, उसमें तो होता है कि उन्होंने एक क्वेश्चन लिख दिया पब्लिकली, आपकी मर्जी आप आंसर लिख सकते हो, तो कई लोग रॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं जानबूझ के। पीपल आर राइटिंग लाइक, वही है ना, वही तो चीज मैं कहती हूँ हमेशा, दे आर नॉट राइट। गूगल तो हर किसी को पकड़ लेगा, तो गूगल बाबा इज नॉट राइट ऑलवेज, तभी तो बोल रही हूँ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। यस यस मैं फिर कोई सर्च ही ना करे, बट वेबसाइट भी देखनी पड़ती है। यहाँ पे जैसे है .gov.in है, वो गवर्नमेंट की खुद की साइट है जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का है, तो ये रॉन्ग थोड़ी ना हो सकता है। बट जरूरी थोड़ी है आपको क्या पता है, दिस इज टोटली गवर्नमेंट साइट। कई बार ऐसा होता है, इवन आजकल फ्रॉड्स होते हैं, आपको पता है ऑनलाइन फ्रॉड्स क्यों है? रीजन इज बीइंग SBI की जैसे हमें मिल रही है SBIonline.com .in आता है ना, तो वी हैव गॉट दोज साइट्स। साइट में जस्ट स्लाइड सा चेंज करेंगे, वो छोटा वर्ड कर देंगे कैपिटल की जगह, हो गया फ्रॉड। आपको कहाँ से पता भी ये वाली ओरिजिनल साइट ही है? देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। सो इसलिए मैं पहले मैम जो ब्रेडली वगैरह है ना वेबसाइट्स, इन्होंने एक नई चीज कर दी हुई है, पहले 1-2 बार आप अगर सर्च करोगे ना वहाँ पे क्वेश्चंस फिर तो आ जाएंगे, बट अगर आप उससे ज्यादा बारी करोगे वो कहते हैं हमारा ऐप डाउनलोड करो फिर देखना जाके आंसर। हाँ तो फिर क्या फायदा है, छोड़ो मैम बिजनेस, हाँ बिजनेस है, ऑब्वियसली दे विल आल्सो प्रमोट, आप लोग फ्री हो वो थोड़ी है। ठीक है चलो नेक्स्ट करें। सो नेक्स्ट इज हेल्थ प्रोफाइल, आई टोल्ड यू। सो ये भी आपका 2010 में हेल्थ प्रोफाइल वाला, ठीक है। सो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, दे हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट बर्थ रेट, डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट में कितने लोग एक साल में कितने बच्चों का बर्थ हुआ पर 1000 चिल्ड्रन, दे चेक आउट दैट वन, ठीक है। उसके बाद देखो अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द सेकंड चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। सो अनएम्प्लॉयमेंट अगर किसी कंट्री में ज्यादा होगी तो दैट वी आर ऑलवेज जस्ट टेलिंग कि वो कंट्री ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां पे लाइबिलिटीज ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा मतलब लाइबिलिटीज ज्यादा है रादर देन हैविंग मोर एसेट्स, ठीक है। सो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मिलेगी आपको? 2 एरियाज में मिलेगी, जैसे हम लोगों ने किया था रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज। सो हेयर ऑल्सो वी हैव 2 एरियाज जहां पे आप लोग करेंगे। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? आप लोग रेडी हो काम करने के लिए पर आपको काम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। वन पॉइंट इज दैट, अनदर इज you are ready for the work, but which type of work you are looking for, you are not getting that kind of work. You are ready for the wage rate even, but आपको जो काम चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, तो that we call it as unemployment. अब आपकी definition meaning देखो यहाँ पे लिखा है, unemployment exists when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. So this is what I said to you, ठीक है। So this is your answer for this. Unemployment की definition पूछ लेते हैं, 1 मार्क में ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है, ठीक है। So you should be ready with this definition, ये आपको आनी चाहिए, बड़ी easy है, not difficult one, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। There are 2 types of unemployment that occurs in the rural areas. Generally what we see, आपके पास 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब भी हम इसमें बात करते हैं रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में वी हैव सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ महीने के लिए सीजन है, कुछ महीने के लिए नहीं है, तो जिस महीने के लिए काम नहीं है वी कॉल दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रामसरन का केस किया था यहाँ पे हमने, सो दैट इज योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज में क्या होता है, लोग लगता है काम कर रहे हैं बट एक्चुअली में दे आर नॉट वर्किंग टू द एफिशिएंट मैनर, टू द फुलेस्ट मैनर, ठीक है। सो दे अपेयर टू बी वर्किंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक ही प्लॉट है, ठीक है, 1 हेक्टेयर का, उस 1 हेक्टेयर के प्लॉट के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि 3 रिक्वायर्ड है, जो 2 एक्स्ट्रा कर रहे हैं काम, दे आर इनटू द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Fine, got the point. Now the next one, educated unemployment. Educated unemployment में क्या आता है? Educated youths are not able to find jobs. मैं educated हूँ, है ना, I have my qualification MCom, MBA, B.Ed, है ना, so I have this much qualification. Fine. So further if I'm thinking तो मैं तो future में आगे PhD भी कर लूंगी, ठीक है। So whenever I'm getting the time, even I will do that. Even I'm preparing for services, civil services also. तो वो साथ साथ में मेरा चलता रहता है, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ हमेशा, ठीक है। So I never like sit at one point and just enjoy
कि चलो जी हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं करना कुछ भी. आई जस्ट कीप ऑन जस्ट वाइडनिंग माई नॉलेज. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर मुझे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलेगी तो एजुकेटेड लोग, आपने इतना पैसा लगाया, आपने कैम्ब्रिज में एजुकेशन ली है, बाद में आपके लिए जॉब हो पियोन की, आर यू रेडी टू डू दैट जॉब? नो वन. सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से. लोग इंजीनियर्स हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर ली, ठीक है, उसके बाद जॉब मिल रही है नॉट एट द गुड लेवल, आईटीआई वालों की. तो आईटीआई वाली कौन जॉब करेगा? जो इलेक्ट्रिशियन की जॉब मिल जाए सो इट इज गुड? आई डोंट थिंक सो. ठीक है माय डियर, इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? एनटीएससी एग्जाम के लिए हमारा स्कूल सेंटर बन रहा है बेटा जी, बता दो, अभी लेटेस्ट न्यूज है जी हमारे स्कूल की. ठीक है जी. Our school is center for this NTSC exam. Okay. ठीक है जी. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा बोलो. I was waiting for the topic to get completed. Still a little doubt. I read in book also. It's just the statement given that somebody like it's in quotations also. The statement is given by 2010. So in Actually, no, I'm just telling you. Actually में देखो एक लॉ बनता है अभी, जैसे प्रोटेस्ट भी चल रही है, ऑर्डिनेंस है ना, ऑर्डिनेंस मतलब अगर इसको हमने पास कर दिया विद एक प्रॉपर उनकी परसेंटेज होती है, देन इट बिकम्स लॉ. ठीक है. अभी तक वो लॉ बना भी नहीं है. ठीक है. हाँ, प्रोसेस कंप्लीट हो गया था लॉ बनाने वाला, ऑर्डिनेंस पास हुआ है ना. सो पास होने के बाद आगे लॉज बनते हैं. सिमिलर थिंग इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सो यहाँ पे चीज क्या है कि आपका जो, क्या बोल रही हूँ मैं, एक मिनट. हाँ, यहाँ पे चीज ये आती है कि वो चीज बन जाती है, इम्प्लीमेंट होते होते कुछ साल लग जाते हैं. सो इम्प्लीमेंटेड जो था 2010 में हो गया था प्रॉपरली. उसी के लिए लोगों को 2010 में जॉब्स मिली थी एसएससी के अंडर. सो एसएससी के अंडर ये था यूनिवर्सल एडल्ट, यूनिवर्सल आपकी एजुकेशन जो थी. ठीक है. 6 to 14 ईयर्स वाले एज ग्रुप वाले जो बच्चे थे उनके लिए उन्होंने लेबर लॉज भी बनाए थे कि कोई भी बच्चा लेबर नहीं करेगा, अगर लेबर करता मिल गया तो बस प्रॉब्लम होगी. ठीक है. अदरवाइज यहाँ पे क्या था कि ये था 6 to 14 ईयर्स की एज में कोई भी बच्चा टिल प्राइमरी स्कूल, सो उनको सारी एजुकेशन मिलेगी. चलो जी आपका लंच टाइम हो गया है, मैं तो ऐसे फिर कितना टाइम ले जाऊंगी आपका. ठीक है. नाउ हैप्पी मील टाइम टू यू ऑल. Yes. I was listening. You want? मैम लाइक आपने जो कहा कि इम्प्लीमेंट जब होता है हम उसको देखते हैं, बट ऐसे कई लॉज, जैसे कई प्रोग्राम्स भी हमने पढ़े, जैसे 11th प्लान, 12th 5-year प्लान. सो दे जस्ट कई प्रोग्राम्स होते हैं कि अभी अभी लॉन्च हुए हैं. और एक बुक में भी था ना कि 11th 5-year प्लान तक उसको मींस इम्प्लीमेंट करना था, बट हम उसका इनिशियल पॉइंट. एंड वन मोर गुड न्यूज, वामिका तेरी न्यूज वाली जो आपने बोला था, सुनो, लिसन नाउ. Dear all, kindly note tomorrow is total off. No extra class, no phone support, no slow learners classes, no posting, no activity, no help to slow learners or high achievers. Regards. So it's off. हमारे लिए भी. ठीक है. चलो ओके. अब आप लोग अच्छे से लंच करो. We will continue next time. ठीक है. So 3rd chapter के साथ करेंगे हम लोग continue. But please solve my doubt. Yeah, I will solve definitely. आज ही पूछ लेना, कल मैं भी नहीं कोई डाउट लूंगी आपका. कल मैं भी ऑफ पे हूँ. I also have to support the farmers. Okay? So, मेरे लेसन के ड्यूरिंग आपको हमेशा कोई गुड न्यूज मिल जाती है. That's for sure. You're happy now, है ना? चलो enjoy. मैंने सोचा था कि I wanted कि मुझे पहले था कि 4th लेसन मंडे को इकोनॉमिक्स का हो, क्योंकि मुझे मैम से पक्का ये बात पूछनी है कि ट्यूसडे को है छुट्टी है नहीं, क्योंकि मैम बताते होते हॉलीडे. Okay. Yes, Romil. Ma'am, I want to ask that NTSC exams are also for class 9. This is what I guess I need to confirm it. I'll then give you information. ठीक है. Grade 10 का तो होता है, I know. Grade 10 के लिए होता है. I've also prepared for this NTSC, पर हम लोगों ने कभी सीरियसली दिया नहीं था. उस टाइम पे पता ही नहीं था NTSC क्या है.
ठीक है, हाँ जी बोलो नूपुर, व्हाट डू यू वांट? मैम एनटीएससी 9th के लिए होता है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन डेट फिनिश हो चुकी है। कब से हो चुकी है वो? तो कब से हो चुकी है? या इफ ही विल्स टू तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा ये पर तो 9th के लिए हो जाती। हाँ होता तो है, मैं कुछ जहाँ तक किया था, मैंने भी 9th में भी 10th में भी दिया था, आई रिमेम्बर स्टिल। हम लोग गए थे गवर्नमेंट स्कूल में वहां पे कोई पेपर देने, तो वी वर जस्ट फीलिंग लाइक कि हाय हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, बिकॉज आई स्टडीड इन पुलिस टीवी जलंधर, तो वहां पे तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड व्हेन वी वेंट टू एग्जाम देने, हमें स्कूल की तरफ से लेके गए थे, तो आई वाज फीलिंग वेरी बैड, ये कैसा स्कूल है, कहाँ पे एग्जाम देने आए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का होता है टोटली ये। तो जो लोग वैसे भी ये एग्जाम क्लियर करते हैं, दैट मीन्स यू आर गेटिंग फुल बेनिफिट्स। एक्सक्यूज मी मैम, आपको स्कॉलरशिप मिलती है प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी बोलो बोलो। मैम मैं फाइंड आउट कर रही थी कि थर्ड चैप्टर में कुछ ऐसा था लाइक REGP। मैम आर यू एबल टू हियर मी? या आई एम लिसनिंग यू, यस बोलो। बाकी यू कैन लीव बेटे, आप लोग खाना खाओ जाके। रूरल वामिका को रहने दो, आप लोग लीव कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी बोलो वामिका, बोलो बोलो वामिका। यस रेस्ट यू कैन लीव बेटा। यस वामिका finding बोलो। out. So वामिका आई विल गिव यू कॉल, आई विल गिव यू कॉल बेटा। आई एम नॉट एबल टू लिसन, नेट आपका हो रहा है बीच में थोड़ा खराब, ठीक है चलो। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास, टू स्टॉप शेयरिंग। प्लीज वेट। हाँ जी बोलो बोलो देवी जी बोलो। मैम बुक में लिखा है कि REGP वाज लो। पहले सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दो। हाँ जी बोलो, अब क्या बोल रहे हो आप? REGP was launched in 1995, but फिर उसकी explanation में आगे लिखा है it। बाय मैम। बाय बाय, ओके ओके बाय बाय, आप लोग लीव कर जाओ बेटा। मैम नाइट कैंप्स का क्या बना? अभी पता चल जाएगा बेटे, आपको सारा कुछ पता चलेगा। लेट मी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। फाइन माय डियर। मैम आपकी क्लास में ये गुड न्यूज़ मिल जाए, मजा आ चलो जाएगा। देख, लेट्स सी ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। वामिका आई विल गिव यू कॉल, नहीं सुनाई दे रहा यहाँ पे, आपका नेट का थोड़ा है। आई गिव यू कॉल पर्सनली। मैम आप स्टेबल हो गया होगा। मैम जस्ट 1 मिनट। हाँ बोलो बोलो। REGP was launched in 1995, and then it's written in its explanation, a target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan. यहाँ पे अंडर है, बट कई प्रोग्राम्स में ये भी होता है ना टिल दैट डेट। सो उन्होंने ये एस्टिमेट होता है कि अब तक मतलब इस टाइम तक फ्यूचर मतलब में हम उस प्लान के अंडर इन्होंने ये प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया था REGP का। मतलब ऐसे कुछ बनाना है हमने, ठीक है। जैसे हमने कोई फंक्शन करना है, सिंपल चीज है ना। अगर मैंने जून में कोई फंक्शन करना है घर पे अरेंज, तो उससे पहले हम लोग एक अनाउंसमेंट ही कर देते ना कि आप सारे ये काम कर लो। उस हिसाब से ये गवर्नमेंट कर देती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने REGP के रिगार्डिंग 25 लाख वाला जो प्लान था, उन्होंने इतनी जॉब्स, उन्होंने सोचा था कि 10th 5-year प्लान में ये प्लानिंग करके रख ली थी। प्लान का मीनिंग ये प्लानिंग करनी। हाँ मैं ये बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा भी है, और ऐसा होता है कि अगर वो जैसे गवर्नमेंट है वो अपना एक एस्टिमेट रखती है कि हम प्रोग्राम को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आज हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया और बिल्कुल आज ही सब कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने एक एस्टिमेट रखा हुआ था, मे बी 2 to 3 years हमारा ये पूरा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट हम इनिशियल डेट को देखना कि लॉन्च तो आज डोमेस्टिक वायलेंस भी कुछ ऐसा ही था कि पहले वो हो गया था। अभी भी अगर हम वो भी देखें 6 to 14 years में सर्व शिक्षा अभियान, अभी कई मींस जो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में रह रहे हैं, मतलब कई उनके भी चिल्ड्रन होंगे जो अभी तक स्कूल्स नहीं जा रहे, हमने पढ़े भी हैं। तो ऐसे तो अभी तक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो फिर तो हम उसकी फिर डेट ही नहीं लिख सकते क्योंकि अभी तक भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। 2020 में भी यार ऐसे तो देख अब आप लोगों को मैंने भी अपनी क्लास का लिंक भेजा। अब सबकी चॉइस है ना, आप लोग क्लास लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते। अब कुछ लोग नहीं ले रहे, मैंने तो दिया ना ऑफर। सो सेम लाइक गवर्नमेंट इज ऑल्सो ऑफरिंग यू दीज राइट्स, ठीक है। बट आप लोगों ने उस चीज को नहीं किया,
ठीक है, अब उसको फिर ये थोड़ी बोला गवर्नमेंट ने इनके लिए नहीं किया, गवर्नमेंट ने तो सबके लिए किया। अब उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद एफर्ट्स ले, बेनिफिट्स ले। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, लॉस सबके लिए बनते हैं। मैम अगर एक ही क्लास की हो रही है क्लास, मैम जैसे हमारी 9F की बस क्लास हो रही है, तो मैम कम से कम भी ऐसे 10 बच्चे आएंगे, कम से कम 10। मैम कभी 20 से ऊपर गई ही नहीं आजकल तो। हाँ वही चीज है ना, दिस इज रॉन्ग। अब आपके ऊपर है कि आपने नहीं है उसका एडवांटेज लेना है कि नहीं लेना, दिस इज अप टू यू। गॉट इट नाउ? गवर्नमेंट सबको बेनिफिट देती है, गवर्नमेंट का मतलब ही ये है कि सबको बेनिफिट देना है हमने। ठीक है जी, क्लियर है? सो आई कैन एंड योर क्लास नाउ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और कोई और कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी टुडे। कल मैं भी ऑफ पे हूँ, प्रॉपर ऑफ। ठीक है, फोन मैंने स्विच ऑफ करके रख देना है। ओके बाय बाय, टेक केयर। टाइम पे कोई वैसे खाना खाता नहीं है। खाओ बट आप लोग खाओ, कुछ खाओ, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लो। मैम सभी ना, मैम मुझे पता है सभी क्लासेस के बाद एकदम एंड में जाके खाते हैं, जा तो क्लास के टाइम पे कोई भी ये जो फ्री टाइम होता है उसमें बस मोबाइल ही चला रहे होते हैं सभी। चलो, आई डोंट वांट टू से फ्री टाइम में सो जाते हैं या मैं टीवी देखती हूँ इस ब्रेक पे। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाँ, थोड़ा मूव कर लो, थोड़ा हिल लो, क्योंकि सारे कद्दू बनते जा रहे हैं बैठ के बेड्स के ऊपर। मैं तो खुद बन गई हूँ। आई आल्सो फील द सेम थिंग। आई एम अटेंडिंग माई क्लासेस इन द रूम एट फर्स्ट फ्लोर। तो मतलब हर क्लास के बाद कोई ना कोई बुक्स लेने नीचे जाना होता है, तो फिर मैं भाग के जाती रहती हूँ। घूमो थोड़ा डांस कर लो, कुछ कर लो, मस्ती कर लो, थोड़ी सी अपने आप को रिजुवेनेट ऊपर नीचे भागती हूँ। इतना भी भागो मत कि गिर ही जाओ बाद में। थोड़ा डांस वांस कर लिया करो, खुश हो जाया करो, अपने आप को थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो। मैंने एक कॉपी रखी हुई है इधर अपने रूम में, उसमें मैं सब कुछ लिखता रहता हूँ बस। तो फिर बैठ के सर जी आप भी कद्दू बन जाओगे। हमें कद्दू मृदुल नहीं चाहिए, हमें फिट एंड फाइन वाला बढ़िया सा हमारा आर्टिस्ट चाहिए, अच्छा सा। नहीं मैम, अब थोड़ी सी वर्कआउट कर रहा हूँ मैं भी। देखा मैम, लॉकडाउन के बहुत गंदे साइड इफेक्ट्स हुए हैं। यस, सबके साथ है। चलो फिर ओके बाय। मेरा नेट इतना ही है आज, थोड़ा सा ही है, बाकी क्लासेस भी ले रही है। ओके बाय बाय। यस ओके बाय। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय। ठीक है, बाय 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 मैम।